sisters, please do. I've done it. Counters 1 to 7. Passport, please. 2, immigration form. Thank you. Please look into the camera, ma'am. Please look into the camera. Okay, thank you. What is the purpose of your visit to the United States? Huh? What is the purpose of your visit to the United States? My sisters are attending my wedding. What? Ah, you're here to attend a wedding. Huh. Thank you. Good, sir. What is the purpose of To your help the United States of America? I'm sorry? Yeah, spend some dollars, help recover your economy. You don't want it? I can go back. I'm going to sister's place to attend wedding. सुनिए इन अंग्रेजी लोगों से डरना मत। टाइम आ गया है कि अब वो हमसे डरें। ये तुम्हारा यूएस में पहला ट्रिप है। पहली बार एक ही बार आता है और पहला अनुभव बहुत स्पेशल होता है। सो एंजॉय, बेशक बेफिक्र बिंदास। ऑल द बेस्ट। 23rd station, 1 ticket. Wait, one moment. Train, 23rd station. No. On the other platform. Yeah, over the platform. Station. 23rd. And now the lady in the gorgeous sari. Oh, sir. Sit. Sit and talk. Yes. I, Shashi, from the India. No, from India. Yes, sir, from the India. No, Sashi, not from the India. From India. And what do you do, Sashi? I also cooking. Cooking, selling. Are you in the catering business? Chota sa small business in house only, making snacks, laddu. Laddu? Round. We have an entrepreneur in the class. Entrepreneur. It's a person who runs his or her own business. Sashi, you are an entrepreneur. शब्दनामा गजल हो गई कैसी भाषा है ये मेरा केविन, ये शादी है ना,
हिंदी में दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग. It is the most special friendship. Friendship of two people who are equal. Life is a long journey. Mira, sometimes you will feel you're less. Kevin, sometimes you will also feel you are less than Mira. Try to help each other to feel equal. It will be nice. Sometimes married couple don't even know how the other is feeling. So how they will help the other? It means marriage is finished? No. That is the time you have to help yourself. Nobody can help you better than you. If you do that, you will return back feeling equal. Your friendship will return back. Your life will be beautiful. Mira, Kevin, maybe you're all very busy, but have family, son, daughter. In this big world, your small little world, it will make you feel so good. Family can never be judgmental. Family will never put you down, will never make you feel small. Family is the only one who will never laugh at your weaknesses. Family is the only place where you will always get love and respect. That's all, Mira and Kevin. I wish you all the best. Thank you. अच्छा, कुछ कहना था. कहो ना. थैंक यू. तूने मेरी जान बचा ली यार, नहीं तो मैं मर ही जाती. मैं भी. चाहे कुछ भी हो जाता, मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करती. मुझे किसी और से प्यार है. हमें पता है, पर तुमने कभी कहा ही नहीं. अब कह रही हो ना. एक लड़का है, मेरे साथ दिल्ली JNU में पढ़ता है. अगर उससे शादी नहीं हुई ना, तो मैं जान दे दूंगी. मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ. बनारस के बाद अलीगढ़ के 3 सालों ने बड़ा कमज़ोर कर दिया था मुझे कुंदन. कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ तो जैसे गायब ही हो गई थी. सर झुका के घर से निकलो, सर झुका के वापस आ जाओ. घर की हर लड़की को बस एक हाउसवाइफ बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी. फूफी घर नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही थी. खैर, पढ़ाई में अच्छी थी तो टीचरों ने कहा आगे दिल्ली में पढ़ना चाहिए इसे. 12वीं के बाद JNU आ गई. तुम्हारे चक्कर में 9th रिपीट करनी पड़ी मुझे, जिसकी वजह से 1 साल का गैप ईयर आ गया. एडमिशन में दिक्कत हो रही थी. मार्क्स पूरे थे पर एडमिशन नहीं मिल रहा था. जब मैं JNU पहुंची तो इलेक्शन चल रहे थे. जी मिस्टर आनंद जी से मिलना काम करने के लिए. यस प्लीज. देखिए मेरे मार्क्स पूरे पर मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा. क्यों? गैप ईयर था इसलिए. आप एक काम करो, कल 11 बजे VC ऑफिस के बाहर पहुंच जाओ. 11 बजे. चलिए. अरे फोन किया कि नहीं किया उसे यार? उस रोज मैंने पहली बार उसे देखा था. कुर्ता जीन्स पहने
एकदम सीधा साधा सा लड़का, आंखों में मासूमियत लेकिन एकदम निडर। He came across like a born leader. उसे देख के कुछ ऐसे लगा था जो 21-22 साल में आज तक नहीं लगा था मुझे। उस बातचीत के दौरान वो कई बार नाराज हुआ, टेबल पे हाथ मारा, चीजें फेंक दी, पर उसकी आवाज ना तो ऊंची हुई ना ही उसने वीसी को धमकाया। फाइनली वीसी को मानना ही पड़ा। फिर वो सब लोग उठे और जैसे आए थे वैसे निकल गए। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। मुस्कुरा के कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। ये जो करे वो ठीक और मैं जो करूँ वो गलत। ये है पार्टी के एब्राहम लिंकन। अब हर काम इनसे ही पूछ के होगा। ये स्पीच देंगे, ये जितवाएंगे इलेक्शन हमें। तुझे बधाई दी तो कुंदन, तू तो खुशी से पागल हो रहा होगा ना कुत्ते। तुझे जैसे को और क्या चाहिए? जिस आदमी को मार दिया उसकी कुर्सी बैठने को मिल गई, अब सोच रहा है उसकी गर्लफ्रेंड सोने को भी मिल जाएगी। और क्या चाहिए? मैंने 2 आंसू भी नहीं बहाए जसजीत की मौत पे। सोचा उसका एक अधूरा सपना है, वो पूरा करूंगी जिंदगी भर। इतना सा था मेरा, तू वो भी जी ले। हाँ, इस आदमी की वजह से जसजीत मरा और तुम उसे कंधों पे बिठाए घुमा रहे हो। हाँ आनंद श्रीवास्तव, इस आदमी ने मारा है उसे। अब धर के चाटते रहो इसे। तो है सिर्फ तुमने जसजीत नहीं खोया है या फिर तुम सब ने अपना दोस्त नहीं खोया है? मैंने अपना भाई खोया है। तुम सबसे कहीं ज्यादा मेरा हक बनता है उस पे। This man is our last hope. तू पावर, पॉलिटिक्स, पोजीशन के लिए भूल जा अपनी भाई की मौत। क्या तुम सब भूल जाओगे उस आदमी को जिसकी ये पार्टी है, जिसका एजेंडा सिर्फ इलेक्शन जीतने का नहीं था? उसके प्रिंसिपल्स थे जिसमें वो बिलीव करता था। और ये आदमी जो बाहर बैठा है उसकी वजह से वो मर गया। जेएनयू के कैंपस में पुलिस आई है। इस पर आपका कोई रिएक्शन? किसने कहा पहली बार हो रहा है? सैकड़ों बार हुआ। मैडम फॉर्मली आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, फिर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? अगर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कल किस बात को लेकर मारपीट हुई है पुलिस के साथ? देखिए, पिटे हैं हम लोग। दोस्तों को चोट आई है मेरी, कईयों की हड्डियां भी टूट गई हैं। आप में से कुछ लोग गुप्ता जी के ऑफिस में क्यों नहीं जाते? विधानसभा के बाहर जाके क्यों नहीं सवाल पूछते? हम जवाब देंगे, लेकिन ऐसे नहीं, पिटके नहीं, मंच पे खड़े होके देंगे, डंके की चोट पे देंगे। वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ रैली। यू आर ऑल इनवाइटेड। थैंक यू। May I have a word with you, sir? अकेले में? जसजीत का सुन के बहुत दुख हुआ। सुनती रहती थी उसके बारे में। एक बार मिली भी थी उससे IHC कॉन्फ्रेंस में। समझदार लड़का था। जी बताया था उसने, बोला आप भी काफी समझदार हैं। तो तुम कैसे बेवकूफ रह गई? एक्सक्यूज मी। अरे सीएम आ गए, सीएम। इनके रीजंस तो ऑब्वियस हैं और मेरे जानने में पूरी रात लग जाएगी आप लोगों को। वैसे मैं खुद जाने को तैयार हूँ जेल। इनके लिए आप इंक्वायरी बिठा लीजिए। 10-15 साल में जब प्रूव हो जाएगा तो भेज दीजिएगा मेरे पास। अब सारे हिसाब बराबर हुए मैडम।